Children, today we will start the next lesson of your honeycomb book, that is Gopal and the Hilsa Fish. It is a comic. I think you people have read comic books, Chacha Chaudhary, and nowadays I think you are having about Spider-Man, Superman, different comics hoti hain, right? So this is also a comic. Comic means comedy book. Okay, just see, it is a dialogue one. Just see this. Gopal and the Hilsa fish. Hilsa is a name of a fish. Is a variety of fish. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. अब गांव में सब वो हिल्सा फ़िश का सीज़न था. इस पर्टिकुलर सीज़न में हिल्सा फ़िश अवेलेबल होती है. सो एवरी वन, all the fishermen in the area, they talk about hilsa fish only. Everyone wants to buy hilsa fish. Every fisherman wants to catch hilsa fish, because in this particular season hilsa fish is available. It is not available for the whole year. Okay, so everyone is talking about and thinking about only and only hilsa fish. Now fishmongers sold nothing but hilsa fish. Even the fishermen, those who used to sell the fish in the market, they also sell only hilsa fish. No other variety of fish was being sold. Come buy, the price of hilsa is down today. They are calling the people कि आइए आइए हिल्सा के फिश खरीद के जाइए, आज उसके दाम बहुत कम है. Householders could talk of nothing but hilsa fish. Even in the family, even in the house, all used to talk about hilsa fish, because it is available only for the particular season, na? That's why they used to, in this area, they used to eat fish. So they were talking about hilsa only. क्या बात कर रहे थे? How much did you pay for that hilsa? You wouldn't believe it if I told you. तो they were talking, आपस में पड़ोसी बात करे कि तुमने ये हिल्सा कितने की खरीदी. तो उसने दूसरा बोलता है, जो खरीद के लाया वो बोल रहा है कि मैंने अगर बता दिया ना तो तुम विश्वास नहीं करोगे, इतनी सस्ती मिली है. So they were boasting about the things, right? Now even the king, and in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Even in the king's palace, all the ministers, the king's ministers, they were talking only about hilsa fish. Means everywhere hilsa fish, hilsa fish, hilsa fish. Even in the king's palace also, the discussion was being done on hilsa fish. Now what in palace the courtier was saying, क्या कह रहा था दरबारी? Your Majesty, you should have seen the huge hilsa fish. Okay, even in the courts, the people were talking about hilsa fish. They told the king, Your Majesty, you should have seen the huge hilsa fish I caught. It was, उसने बोला कि महाराज आपने देखा होता कि मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है. वह तो इतना ही कहा था. He spoke this much. What happened? The king got angry and he shouted, Stop it! उसे गुस्सा आया. उसने बोला चुप रहो. Are you a courtier or a fisherman? King said, कि तुम दरबारी हो, मेरे मंत्री हो, या फिशरमैन हो जो हमेशा हिल्सा के बारे में बात करते रहते हो. The courtier fell silent. With downcast eyes, the king felt guilty. अब वो दरबारी चुप हो गया बिल्कुल अपनी आंखें नीचे करके. And the king felt guilty. King felt that he should have not shouted this way on the courtier. So राजा को भी पछतावा हुआ. I'm sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. Then the king explained the courtier why he shouted. He told the courtier that he apologized. First he apologized. उसने माफ़ी मांगी. फिर उसने बोला कि मैं अपना टेम्पर लूज़ कर गया था, मुझे गुस्सा आ गया था कि ये हिल्सा फिश का सीज़न है और कोई भी नहीं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes. तो उसने गोपाल इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट कोर्टियर इन द किंग्स पैलेस. तो उन्होंने गोपाल की तरफ देखते हुए फिर बोला, अपनी बात पूरी की. ना ही गोपाल तक किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में
इवन 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में रोकना, बोल बातचीत करना बंद नहीं कर सकता। जिसे देखो वो हिल्सा फिश के बारे में, गोपाल भी किसी को नहीं रोक सकता। ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी, गोपाल ने बोला। गोपाल सेड, oh no majesty, I can do that. Then let me see you buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. Then what the king did, he threw a challenge to Gopal. He challenged Gopal कि you have to, he told Gopal that he had to buy a big hilsa fish from the market, and from the market till the palace he has to bring that fish without anyone asking or talking about that fish. राजा ने बोला कि बाज़ार से एक बड़ी हिल्सा फ़िश खरीदो और बाज़ार से लेके महल तक उस हिल्सा फ़िश को लेकर आओ, पर शर्त ये है, कंडीशन ये है कि रास्ते में कोई भी इंसान ना हिल्सा फ़िश के बारे में बात करे और ना ही तुमसे कुछ पूछे। गोपाल हैप्पीली एक्सेप्टेड द चैलेंज। ही सेड, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। उसने बोला ठीक है महाराज, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड, अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। उसने गोपाल एंड दिस सीन इज एट गोपाल्स हाउस एंड गोपाल एंड हिज वाइफ दे आर टॉकिंग। अब गोपाल्स वाइफ सॉ दैट गोपाल हैज़ शेवन हिज फेस हाफ। उसने अपना फेस जो है आधा शेव किया है, आधा नहीं किया है। सो शी वॉन्डर्ड, वो एकदम चौंक गई एंड शी आस्क्ड कि वाई यू हैव शेवन योर फेस हाफ। उसने बोला कि आपने आधी शेव क्यों की है। देन गोपाल रिप्लाइड, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। ही सेड, आई एम ड्रेसिंग माई सेल्फ बिकॉज आई हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय अ हिल्सा फिश। उसने कहा कि मैं अपने आप को हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विद ऐश। फिर अगेन, अब वो उसने देखा कि उसने फिर गोपाल से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या बात क्या है तुम्हारे साथ, कि तुम अपने मुंह पे राख क्यों मल रहे हो, कालिख क्यों मल रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। गोपाल ने बोला कि तुम्हें मैंने बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? उसने कहा उसकी वाइफ को, क्योंकि वो एक दरबारी है, एक मिनिस्टर है राजा के दरबार में, and he is dressing in such a shabby manner. So the wife got irritated and she requested her husband. उसने कहा कि सुनो मेरी बात सुनो प्लीज़, तुम ऐसे कैसे गंदे से भद्दे से फटे फुटे कपड़े में, रैग्स, जैसे ही इज़ वियरिंग फटे फुटे कपड़े ना, जगह जगह से फटे हुए कपड़े हैं। तो उसने कहा कि तुम ऐसे फटे कपड़े और इतने गंदे से कपड़े पहन के कैसे बाहर जा सकते हो, तुम कर क्या रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। हाउ मैनी टाइम्स आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब दिस टाइम he got irritated, Gopal got irritated and he said कि मैं कितनी बार कहूँ, तो तुम औरत को समझ में क्यों नहीं आती है, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। नाउ शी थॉट, ही वेंट अवे टू द मार्केट एंड शी थॉट इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। उसने बोला कि इनका तो दिमाग ख़राब हो गया, ये पागल हो गए हैं। नेक्स्ट, सो व्हेन ही गोपाल बॉट द हिल्सा, ही रीच द मार्केट इन such dress, half shaven, with ash on his face, फटे वटे कपड़े, अजीब तरीके से he reached the market. Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. उसने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी and he started walking towards the palace. जैसे भी कंडीशन थी, राजा ने कहा था कि बाजार से हिल्सा फिश खरीद के तुम्हें महल तक आना है, तो he did so. Mother, look at that man, isn't he comical? वहाँ पे एक छोटा बच्चा देख रहा है उस आदमी को देख रहा है कि अजीब कपड़े पहने, अजीब से मुंह पे दाढ़ी है, सब लगी हुई है। उसने बच्चा देखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ देखना ये आदमी कैसा है, क्या पागल जैसा नहीं लग रहा, मजाकिया नहीं लग रहा। देयर पीपल देयर दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मैन, ही मस्ट बी अ मैड मैन। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पागल आदमी होगा, कुछ कह रहे हैं हश
आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। किसी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है इसका दिमाग चल गया हो। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट। अब गोपाल पूरे मार्केट से निकल के लोग उस गोपाल के बारे में उल्टा सीधा खुसर खुसर कर रहे थे। एंड ही रीच द पैलेस। जब वो पैलेस में पहुंचा तो गेट पे दरबान ने, जो जो गेट कीपर्स थे, उन्होंने उसको रोका। व्हाट डू यू वांट, बोला तुम्हें क्या चाहिए। गोपाल से आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल ने बोला कि मुझे राजा को देखना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। उसने बोला कि तुम राजा को क्या देखोगे, तुम राजा को नहीं देख सकते, भागो यहाँ से। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल ने क्या किया, गोपाल वहाँ पे जोर जोर से गाना गाने लगा और अजीब अजीब डांस करने लगा। इनसाइड द पैलेस द मैन इज़ क्रेजी। अब राजा को बाहर से आवाज़ें आ रही थी जोर जोर से, ये आदमी तो पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे जल्दी से बाहर फेंको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। एंड वो बार बार कह रहा है कि नहीं, मुझे राजा को देखना है, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तभी राजा ये सब आवाज़ें सुनता है। देन ही कॉल्ड द गेट कीपर, ही कॉल्ड द one of his soldiers and he ordered him to bring that man to in front of him. तो गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। देन अदर कोर्टियर्स, बाकी जितने भी मंत्री वहाँ होते हैं वो सब गोपाल को पहचान जाते हैं। एंड दे से इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है, ये तो गोपाल है, ऐसे सब कहना शुरू कर देते हैं। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तब वहाँ पे एक दरबारी होता है, वो कहता है इस आदमी का तो दिमाग ख़राब हो गया है। दूसरा कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। दूसरा कहता है कि मुझे तो लगता है ये इसके जो पागलों वाले जोक सुनाता है ना, उसका ही एक आध हिस्सा होगा। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस वे। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल से राजा, नाउ द किंग इज आस्किंग गोपाल कि ठीक है गोपाल, आप मुझे बताओ कि तुम ये इस तरह से, इस भद्दे तरीके से, इस भद्दे कपड़ों में क्यों पहने हो और क्यों ऐसे क्यों घूम रहे हो। तो गोपाल रिप्लाइड कि मैजेस्टी यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आप कुछ भूल गए हो। फॉरगॉटन समथिंग, तो राजा सोचता है कि मैं भूल गया हूँ कुछ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. The गोपाल ने राजा को याद दिलाया कि कितनी अजीब बात है ना, कि किसी ने भी हिल्सा फ़िश के में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मेरे हाथ में इतनी बड़ी हिल्सा फ़िश है, नो वन हैज़ आस्क्ड एनीथिंग अबाउट द हिल्सा फ़िश, नॉट इन द मार्केट, नॉट इन द कोर्ट, नॉट इन द पैलेस एंड नॉट इवन इन द कोर्ट। दरबार में या महल में किसी ने भी, सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, किसी ने एक शब्द भी हिल्सा फ़िश के बारे में नहीं बोला। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। तब राजा को याद आया वो चैलेंज जो उन्होंने गोपाल को दिया था। हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा हंसने लगा, ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही कंग्रेचुलेटेड गोपाल फॉर फुलफिलिंग दैट चैलेंज सक्सेसफुली। एंड उन्होंने बोला कि तुमने एक बार फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन।